Now, what is the first transaction in question number 7? Started business with a capital of 5,000 rupees. Okay, so what we have done, we have invested some money into the business. How much? 5,000 rupees. Okay, so first entry, what is the first entry? Now see, we are going to first pass journal entry. Okay, now I will draw the format of the journal. Okay, what I'm drawing now? Journal. Okay, first we have to write here journal entries. Okay, along with me, write it down in your notebook. Huh? Don't just look at the session. I will try my best to write everything on the screen. Journal entries. You just write journal entries and then write in the books of and write your name. Okay, in the books of and write your name. Then, yes, tell me what is the name of the first column in journal? What is the name of the first column in the journal? Sir, date. Yes, date. Then second column, Particulars. particulars. Third, LF, ledger folio. ledger folio. And then debit and credit. Okay. Debit and credit. Okay, this is the type of question they will ask in objectives. What is the name of the first column of the journal entries or journal proper? You need to write it down. First column is date. Second is particulars. Third is ledger folio. I am just writing short form because it will just take more time. Then debit and then credit. Okay. After this, now let's, if they have not given the date in the question, what you will do, just write here 1 or okay, or even if you don't write it, it is okay. So now first entry for capital. Yes, what is the journal entry for capital? Okay, first of all, tell me what type of account is capital? Is it a real account, personal account, or nominal account? In this transaction, there are two elements. Okay, first is capital and the other one is what? Cash. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, after we have identified the elements in the transaction, what we will do now, we will see what type of account it is. Now, what is cash account? Is it a real account, personal account, or nominal account? Real account. Real Sir, account. real account. And capital? Capital is a Personal. personal account. Okay. Then what we will do? We will write down the rule of the type of account. What is the rule of personal account? What do we debit? Debit the receiver. Credit the giver. Okay, debit the receiver, credit the giver. Okay. And for cash, what is the rule? What is the rule for real account? Debit what comes in, credit what goes out. Okay. Debit what comes in, credit what goes out. Okay. It is okay if you speak loudly. Huh? No need to whisper in the mic. Okay. Now tell me, what is coming into the business? Is cash coming in the business or going out of the business? Sir, coming. It is coming in the business. Okay. So debit what comes in. Arey, mouse kidhar gaya? So we will debit cash account and we will credit the capital account because in the name of capital, the business is coming into the business. Sorry, cash is coming into the business. Okay. So here we will write the journal entry. It will be fine when we will start physical lectures in the class. I think by the end of January, we will start offline lectures. I will just array.
cash account debit. How much? What is the amount? 5,000. Okay, we will write here 5,000 on debit column. And then, sorry, here we have to write debitor. Don't forget to write debit here. We have to always write debit in front of the account name. To capital account. To what? To capital account. Okay, so whatever we are trying to credit, whatever account it is, we will write it on the next line. In the first line, we will write the name of the account which we are debiting. Okay, which here is cash account. Yes or no? Yes. Yes, sir. Okay, have you understood this journal entry? And, Yes, sir. and don't just leave this. We have to also write here 5,000 on the credit side. So this is how you are going to pass journal entry. Now, if you, because we are doing it in class, there is no need, but in exam, you have to write here something as narration. Okay, what I'm writing here, narration. Here, what I will write, being and I will just reframe the transaction. What I will reframe, being business started with capital rupees 5,000 or cash invested in business of rupees 5,000. Okay, whatever you have, whatever transaction it is, you have to reframe it in your own words and write it down here. ठीक है, अगर किसी को इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है तो बोल दो बस चैट बॉक्स में, मैं हिंदी में समझा दूंगा, मराठी में समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तुम्हारा समझना इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं. ठीक है, बोलो ट्रांजैक्शन समझ में आया क्या? यस सर. ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपको एक बार वापस. कहाँ गया हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? जर्नल एंट्री. जनरल एंट्री. ये लिखना जरूरी है क्या? यस सर. कभी भी Yes, आपको sir. क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपको हमेशा ये लिखना है पहले, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, जो भी उसका नाम है. ठीक है, जो भी कस्टमर का नाम है या फिर क्लाइंट का नाम है, आपको वहां पे लिखना है. ठीक है, उसके बाद जर्नल ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे? डेट. डेट. ये क्या लिखा है? पर्टिकुलर. पर्टिकुलर. ये लेजर फॉलियो. लेजर फोलियो. ये डेबिट अकाउंट. डेबिट और क्रेडिट Credit. अकाउंट. ठीक है, ये डेबिट का स्पेलिंग गलत लिखा है क्या मैंने, कि वैसे ही लिखते हैं? शॉर्ट फॉर्म में लिखा सर आपने. ठीक है, ये डीआर क्या है? ये डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है. सीआर क्या है? ये क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि मेरी इंग्लिश खराब है इसीलिए मैंने डीआर लिखा है. ठीक है, ऐसे मत बोलो. उसके नहीं बाद सर, ऐसे ही लिखा था. ठीक है, नहीं तो बोलोगे सर की इंग्लिश खराब है, डेबिट का डीआर लिख दिया सर. ठीक है, उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 1 क्या था? स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 5,000. मतलब क्या, मैंने 5,000 रुपए बिजनेस में डाले, वो मुझे रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा क्योंकि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन है. ठीक है, उसमें दो टाइप के अकाउंट है, एक है कैश, दूसरा है कैपिटल. कैश ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. उसके बाद कैपिटल. कैपिटल क्या है? पर्सनल अकाउंट है. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ठीक है, तो कैपिटल ने पैसे दिए बिजनेस को, कितने पैसे दिए? 5,000 रुपीज, इसीलिए कैपिटल को क्रेडिट करेंगे. कैश बिजनेस में आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसीलिए कैश को हमने डेबिट किया. ठीक है, तो उसके बाद ये मैंने क्या यहाँ पे क्या लिखा है? बीइंग क्या लिखा है? ये इसको क्या बोलते हैं? इसे नैरेशन बोलते हैं. क्या बोलते हैं? नैरेशन. ठीक है, मैं यहाँ पे बड़े शब्दों में लिखता हूँ, थोड़ा कलर अलग यूज कर. वो आर है, वी नहीं है. NARRATION. ठीक है, एंट्री के बाद नरेशन लिखना कंपलसरी है. ठीक है, हम लोग यहाँ पे नहीं लिख रहे, इसका ये मतलब नहीं कि लिखना नहीं है. ठीक है, तो ये क्या है? बीइंग, ये इसको नरेशन बोलते हैं. ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं.
अभी एंट्री नंबर 2 जरा पढ़ो, एंट्री नंबर 2 क्या है, सॉरी ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्या है? ट्रांजैक्शन नंबर 2 है। हाँ, सबको फोटो मिल गया है क्या, जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे Sold शेयर goods किया to है? Mr. X of rupees 500. सोल्ड गुड्स टू रुपीज एक्स फॉर रुपीज 500, इसमें कौन से दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है बताओ मुझे जरा। Mr. X and sales. ठीक है, मिस्टर एक्स एंड सेल्स, बहुत सही बोला आपने, सेल्स अकाउंट आएगा। सोल्ड गुड्स का क्या मतलब होता है कि सेल्स अकाउंट होता है। ठीक है, अभी मुझे बताओ सेल्स अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? नॉमिनल। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है। मुझे बताओ नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो मुझे बताओ सेल्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे? Credit. ठीक है, क्रेडिट करेंगे। Credit. ठीक है, और एक्स को क्या करेंगे फिर, डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्स को गुड्स मिले हैं, उसने पैसे दिए क्या? Yes, sir. ठीक है, तो उसने पैसे दिए हैं तो मिस्टर एक्स अकाउंट आएगा या कैश अकाउंट आएगा? कैश सर अकाउंट। नाम मेंशन है तो वो भी कर सकते हैं। नहीं, वो नहीं करना है। अगर कैश आया है तो नाम मेंशन नहीं करना है। ठीक है, अगर पैसे नहीं दिए तो रिकॉर्ड करना है उसका नाम। ठीक है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. वापस एक बार बताता हूँ। जब भी ट्रांजैक्शन में ऐसा लिखा है कि पेमेंट आ चुका है, वहां पे आपको उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा कैश अकाउंट को भी ये कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको उसका नाम भी रिकॉर्ड करना है तो आप क्या करोगे, दो एंट्री पास करोगे। पहले में नाम लिखोगे, फिर दूसरे में कैश अकाउंट लिखोगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे लिख दूँ। तो चलो अभी यहाँ पे लिखते हैं कैश अकाउंट। हाँ, मुझे बताओ बिजनेस में कैश आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है। ठीक है, तो वापस एक बार कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। हाँ, अभी कैसे समझेगा कि उसको हमने जो गुड्स बेचे उसके लिए पैसे आए कि नहीं? ट्रांजैक्शन में लिखा है क्या कि ऑफ, अगर लिखते हैं कि सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स ऑफ रुपीज 500 ऐसा लिखा, तो इसका मतलब है कि उसको कैश नहीं मिला। अगर फॉर 500 लिखा है तो इसका क्या मतलब है कि हमको कैश पेमेंट मिल गया। ठीक है, हाँ, अगर वहां पे बुक में कुछ भी सॉल्यूशन गलत दिया है तो उसका मतलब वो सॉल्यूशन गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कैश अकाउंट डेबिट कितना, अमाउंट कितना है बोलो? 500. 500। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। ठीक है, टू सेल। जिनका हो गया है ट्रांजैक्शन लिख के, हाँ देखो कोई तो मूवी देख रहा है बीच में। अरे भाई इतना बोर पढ़ा रहा हो क्या, तुम मूवी भी देख रहे हो साथ में? ठीक है, जाने तो देख रहे हो तो देख, कोई टेंशन नहीं है। टू सेल्स। ठीक है, यहाँ पे 500। जिनका ये ट्रांजैक्शन हो गया है वो आगे का ट्रांजैक्शन खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि आगे का नहीं करना है। ठीक है, लिख दिया मैंने यहाँ पे भी 500। उसके बाद यहाँ पे नरेशन लिखोगे आप, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑफ रुपीज 500 टू मिस्टर एक्स। ठीक है, अभी थर्ड ट्रांजैक्शन। अभी हम लोग ट्राई करेंगे कि ओरली क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 3 पढ़ो जरा, क्या है? Received cash from Mr. X rupees 450 in full settlement. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हाँ, इन फुल सेटलमेंट। हमने उनको गुड सेल किए थे शायद पहले ट्रांजैक्शन में, सेकंड ट्रांजैक्शन में, बोलो हाँ या ना? Yes, sir. उसमें उन्होंने कुछ बताया था कि कैश मिला है नहीं मिला है? नहीं बताया था। ठीक है, कुछ वो पढ़ के समझ में नहीं आ रहा था कि पेमेंट आया है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगता है कि हमने गलती कर दी ट्रांजैक्शन, हमको क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए था क्या? Yes, ठीक है, sir.
इसका क्या मतलब है, हम लोग ट्रांजैक्शन वाइज क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी अच्छे से क्वेश्चन सामने रखो, हम पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे, उसके बाद एंट्री पास करेंगे। ऐसा कभी नहीं करना है कि ट्रांजैक्शन 1 बाय 1 आप सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर एक्स 450, वो ट्रांजैक्शन नंबर 2 के आगे लिखो रीड ट्रांजैक्शन नंबर 3, उसको मार्क करो पेन से। ट्रांजैक्शन नंबर, अच्छा अभी आपके पास अगर मोबाइल में अगर होगा, नहीं तो नोटबुक में लिख दो ट्रांजैक्शन नंबर 3 के सामने कि आपको ट्रांजैक्शन नंबर 2 देखना है। लिख दिया क्या? यस सर। हाँ, यस सर। ट्रांजैक्शन नंबर 4 क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर टी फॉर 1500। यहाँ पर भी उन्होंने नहीं बताया कि पैसे दिए हैं कि नहीं, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या है? पेड टू मिस्टर टी इन फुल इन कैश 1450, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन नंबर 5 के सामने लिखो सी ट्रांजैक्शन नंबर 4, या फिर लिखो C4, ठीक है। तो आप नाम से लिंक कर सकते हो ट्रांजैक्शन को वैसे। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 6 क्या है? पेड सैलरी टू मिस्टर जेड ऑफ ₹300, सैलरी दे दी है। उसके बाद 7th है परचेज्ड अ प्लांट फॉर ₹1000, वहां पे पेमेंट किया है कि नहीं कुछ बताया नहीं है, बाद में देखेंगे। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 8 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1300, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली उन्होंने बता दिया है कि आपको कैश मिल चुका है 1300 का, इसीलिए उन्होंने नाम मेंशन नहीं किया। उसके बाद 9th ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹50। उसके बाद 10th क्या है? डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक ₹1000, हमने बैंक में पैसे डाल दिए कैश में से निकाल के ₹1000। उसके बाद 11th ट्रांजैक्शन है पेड वेजेस 100 एंड 12th है विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। मुझे एक बात बताओ, पर्सनल यूज के लिए जब हम लोग कैश विड्रॉ करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग। Drawings. ठीक है, तो ये ड्राइंग्स वाला है, उसको मार्क करके उसके आगे लिखो ये ड्राइंग्स है, ठीक है। कभी भी ऐसा कुछ आता है पर्सनल वर्ड आया मतलब वहां पे आपको उसको अंडरलाइन करके लिखना है ड्राइंग्स। हमने लास्ट टाइम कुछ पढ़ा था क्या? कैश डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, कुछ पढ़ा है मैंने आपको ये? Yes, sir. ठीक है, अगर कैश डिस्काउंट होता है तो उसकी जर्नल एंट्री मैंने आपको बता दिया है। अभी तक मैंने आपको शायद ट्रेड डिस्काउंट नहीं सिखाया है। एक बात समझ लो, जब आपने कुछ गुड्स बेचे हो, जैसे कि ये क्वेश्चन में हमने गुड्स बेचे 500 रुपीज के, उसके बाद हमको 450 रुपीज कैश मिला है, इसका क्या मतलब है कि वो कैश डिस्काउंट है। क्या है वो? कैश डिस्काउंट। और अगर वैसा नहीं हुआ, मतलब आपने कुछ गुड्स बेचे और आपको तभी का तभी पेमेंट मिल गया, तो वो क्या हो गया? उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्रेड डिस्काउंट। वो कभी भी हम लोग Trade बुक्स में discount. रिकॉर्ड नहीं करते। बोलो, हम लोग क्या बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते? हम लोग ट्रेड डिस्काउंट Trade discount. बुक्स में रिकॉर्ड Trade नहीं करते, discount. ठीक है। अगर नोटबुक होगी तो नोटबुक के हेडिंग के कॉलम में उधर लिख दो अच्छे से, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है क्वेश्चन। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते बुक्स में। तो चलो अभी ये सेकंड जो एंट्री है, ये स्टूडेंट ने बराबर बताया था। यहाँ पे क्या आएगा? मिस्टर एक्स आएगा। पहले रिकॉर्ड करो कि उनसे हमको पैसे मिलने हैं। मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक। आपका नोटबुक अभी गंदा हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ एग्जाम में गंदा नहीं होना चाहिए। अभी जितना गंदा हो रहा है उतना गंदा होने दो। वो जो आपने एंट्री पास की है 2 नंबर की, उसको काट दो और काट के वहां पे लिखो क्यों काट दिया। We have to read the entire question and only then solve the question. We are not going to solve the question transaction wise, ठीक है। अभी थर्ड ट्रांजैक्शन का एंट्री पास करेंगे। रिसीव्ड कैश फ्रॉम एक्स ₹415 फुल सेटलमेंट। मुझे बताओ कितना डिस्काउंट दिया है हमने मिस्टर एक्स को? 50 रुपीज का। 50 50 rupees. रुपीज का, ठीक है। मुझे बताओ डिस्काउंट अलाउड है कि डिस्काउंट रिसीव्ड है? अलाउड। डिस्काउंट अलाउड है। वो हमारा खर्चा है कि इनकम है?
खर्चा है। खर्चा है। ठीक है, कौन सा अकाउंट है बोलो? नॉमिनल, पर्सनल, रियल, डिस्काउंट अलाउड? नॉमिनल। नॉमिनल, ठीक है। बोलो, तो डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? डेबिट करेंगे सर कैश के साथ। ठीक है, बराबर, आपने आगे का भी बोल दिया। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट। अरे बाबा, कैश अकाउंट डेबिट, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ डीए। डीए का मतलब डिस्काउंट अलाउड। टू, हाँ अभी टू क्या लिखूँ? सेल्स लिखूँ या मिस्टर एक्स लिखूँ? सर मिस्टर एक्स। सर मिस्टर एक्स, क्यों? क्योंकि पहले सर उनको ऊपर डेबिट किया है। क्यों को डिस्काउंट दिया है हमने। मुझे एक बात बताओ, कैश किससे मिल रहा है हमको? एक्स। एक्स, ठीक है, एक्स पैसे दे रहा है तो एक्स को ही देंगे ना क्रेडिट, दूसरे को क्यों देंगे? ठीक है, एक्स कौन सा अकाउंट है बताओ? पर्सनल, नॉमिनल, रियल? पर्सनल। पर्सनल। पर्सनल अकाउंट, ठीक है। एक्स क्या है? रिसीवर है कि गिवर है? गिवर। गिवर। ठीक है, तो गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल ही ये है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, मिस्टर एक्स इज गिवर, सो वी आर क्रेडिटिंग मिस्टर एक्स। कितना क्रेडिट करूं उनको? 450 करूं या 500 करूं? 450। बोलो बोलो, 500 करना है? सर 450? 500। हाँ सही बोला। बोलो, किसने बोला 500? नाम बताओ। पंकज नागवानी। करेक्ट आंसर दिया है, 500 आंसर है। ठीक है, हमको कैश मिला है 450, तो कैश को उतना ही डेबिट करेंगे 450 का। डिस्काउंट हमने दिया है 50 रुपीज का खर्चा, तो हमने वो 50 रुपीज को डेबिट किया है। एक बात याद रखना है, जितना डेबिट किया है उतना ही क्रेडिट करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि डेबिट 450 50 किया है, 500 किया है और क्रेडिट में 450 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर देखो 5000 है, 5000 है, 500 है, 500 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? 500 और 500 है। ठीक है, जितना डेबिट किया उतना ही क्रेडिट करना है बुक्स में। अरे हाँ या ना? हाँ। यस सर। यस सर। ठीक है, मैंने यहाँ पे नरेशन नहीं लिखा है सेकंड और थर्ड ट्रांजैक्शन में, इसका ये मतलब नहीं कि आपको नहीं लिखना है। ठीक है, भूलना मत, एग्जाम में जितनी भी घाई होती है हमको एंट्री पास करने की, शांत हो जाओ अच्छे से। नहीं तो एक काम करना है आपको, 2 लाइन छोड़ देना है हर एंट्री के बाद, सब एंट्रीज पास कर देनी है और फिर एंड में सबका नरेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी करो लेकिन नरेशन एग्जाम में लिखना भूलना नहीं। ठीक है, अभी 5 मिनट बचे हैं, हम लोग एक और एंट्री पास करेंगे और उसके बाद बाकी के जो भी ट्रांजैक्शन है उसका एंट्री आप खुद से घर पे सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है फोर्थ ट्रांजैक्शन के बाद सब ट्रांजैक्शंस इजी है। सब लोग लिख रहे हैं ना नोटबुक में? रब करूँ ना? यस सर। यस सर। कोई अगर लिख रहा है तो बता दो, रुकना है। मैं उसको पीछे भी ले सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। चलो अभी फोर्थ ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं वापस एक बार। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर टी फॉर ₹1500। ठीक है, हमने गुड्स परचेज किए मिस्टर टी से 1500 रुपीज के। बोलो, दो अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व है? बोलो। परचेज एंड कैश। परचेज एंड कैश। मुझे एक बात बताओ, ये फोर्थ नंबर का ट्रांजैक्शन है, इसका पेमेंट क्या हमने बाद में कभी किया है या फिर ऑन द स्पॉट कर दिया है पेमेंट? नो सर, बाद में किया है। बाद में किया है फिफ्थ इसमें। तो यहाँ पे कैश आएगा या मिस्टर टी आएगा? मिस्टर टी। मिस्टर टी आएगा। ठीक है, बाद में जब वो पेमेंट करेंगे तब कैश आएगा, यहाँ पे कैश नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि फिफ्थ ट्रांजैक्शन के आगे लिख दो C4 ट्रांजैक्शन, या फिर आप फोर्थ के सामने लिख दो C5th ट्रांजैक्शन। ठीक, या तो ऊपर लिखो नहीं तो नीचे लिखो, बस याद रखो, भूलना नहीं है, मार्किंग करके रखना। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। बोलो, हाँ एक है परचेजेस अकाउंट और दूसरा है मिस्टर टी। बोलो, टी अकाउंट क्या है? कौन सा है? पर्सनल, नॉमिनल, रियल? पर्सनल। पर्सनल। टी क्या है? रिसीवर है कि गिवर है? गिवर। गिवर।
मुझे एक बात बताओ, रिसीवर है। टी ने हमको कैश दिया है क्या? अभी तक दिया है क्या? सर रिसीवर है वो। नहीं सर। No, sir. अभी तक नहीं दिया है, तो अभी तक वो क्या है? रिसीवर है। हमने अभी उसको गुड्स दिए, उसको गुड्स मिले, तो वो क्या हो गया? रिसीवर हो गया। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, रिसीवर को डेबिट करना है क्रेडिट करना है? क्रेडिट करना है सर। क्रेडिट करना है सर। परचेज ये अकाउंट credit टू करना है। मिस्टर टी। कंफ्यूजन हुआ कि नहीं? अभी बताओ, सच बताओ, कंफ्यूजन हुआ कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, चलो, मैंने आपको पहले ही बोला था कि वो जो स्पेशल एंट्रीज है जो मैंने 14 आपसे लिख के लिए है, वो इसीलिए लिए है क्योंकि वो कंफ्यूजिंग है। आप रूल पता है फिर भी आप उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए मैंने आपको स्पेशली लिखाया था परचेजेस का एंट्री। ठीक है, जब भी परचेज का एंट्री आता है रूल भूल जाओ, पहले परचेजेस को डेबिट कर दो। आप परचेजेस कौन सा अकाउंट है वो बताओ। Nominal. बोलो, पर्सनल, नॉमिनल, रियल, कौन सा अकाउंट है परचेजेस? Nominal. Nominal. नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, हमको वो हमारा एक्सपेंडिचर है कि इनकम है? परचेज अकाउंट एक्सपेंडिचर। Expenditure. एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो हमने इसीलिए उसको डेबिट किया है। कितना किया है? 1500 टू वो मिस्टर टी भले ही हमको उससे पैसे नहीं मिले फिर भी हम लोग उसको क्रेडिट देंगे। वो, हाँ, अभी मुझे बताओ, हम जब किसी से पैसे परचेज करते हैं और हमें उस सॉरी हम लोग किसी से गुड्स परचेज करते हैं और उसको हम पेमेंट नहीं करते, तो वो पर्सन का अगर हमको नाम पता नहीं है तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? सर एक्स लिखते हैं। ये मिस्टर टी कौन है? डेटर है कि क्रेडिटर है हमारा? Credit. क्रेडिटर। ठीक है, सर बैड डेट। अरे बैड डेट कैसे होगा? बैड सर डेट्स बैड क्या डेट होता है? लिखेंगे। बैड डेट्स क्या होता नहीं है? मिलेंगे हमने तो उसको पैसे। बेचा और उसने हमारे पैसे डुबाए। हाँ। हमने इसको कुछ बेचा है क्या मिस्टर टी को? नो। No, sir. तो वो डेटर नहीं है। डेटर बैड डेट होता है, क्रेडिटर कभी बैड डेट नहीं होता। ठीक है, हमने उसको पेमेंट नहीं किया तो हम उसके बैड डेट बन जाएंगे। ठीक है, तो चलो अभी 1 मिनट बचा है, तो उसके बाद हम यहाँ पे नरेशन लिखेंगे जो भी है इसका। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर टी ऑफ ₹1500। ठीक है, बाकी का ट्रांजैक्शन आपके लिए होमवर्क है, जैसे मैंने फर्स्ट 3 किए वैसे आपको उसको भी सॉल्व करना है। ठीक, एक मैं अभी अटेंडेंस ले लेता हूँ फटाफट। चलो, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir, and most welcome. Thank you, sir.